Welcome to A Delhi Love, Ishq Mohabbat Pyar, the podcast that treats Delhiwalas to captivating conversations on living and loving all things Delhi. Delhi is not just a place, it's a state of mind, an attitude that leaves a mark on everyone who visits or calls it home. I'm Yasmin Kidwai, your host, a documentary filmmaker, former municipal councillor, and at heart, the quintessential Delhi girl. I love how Delhi is both old and new at the same time. I value its history and heritage and love exploring the new aspects of the city we share. I'm no expert, but I grew up in the gullies here, enjoyed public service here, and just like you, shared a deep passion for Delhi's enigmatic soul. Together, let's embrace the delightful contradictions that make Delhi the city it is. After all, around every corner, there must be 1,000 dastans to share in this megacity of a million conversations. Today we'll walk through Delhi's green landscape and talk about the history, stories, and the significance of trees in Delhi. In a city often called a concrete jungle, the trees make all the difference. You know, Delhi, with its unique blend of history and culture, is home to over 250 species of trees, each adding its unique touch of color and character to the city's changing seasons. In summer, Delhi is blooming with amaltas and gulmohar, a yellow, red, blue, purple and pink palette. In monsoons, there is the rusty red of the white fig or filcon. In autumn, Devil's Tree fragrantly ushers in the festive season, sprinkling everything with its signature white bloom. In winters, while the trees in the west put on new leaves, Delhi's trees begin to shed theirs. To introduce us to the extraordinary world of Delhi's trees, we are meeting Azad Jain, also known as Swami Prem Parivartan and famously called People Baba, a man deeply connected with these natural wonders. तो नानी एक बड़ी प्यारी सी बात बोलती, कहती हाँ बेटा, धरती गर्म होगी, माटी गर्म होगी, खेत गर्म होंगे, सड़कें गर्म होंगी, तालाब गर्म होंगे, सूख जाएंगे, नदियाँ गर्म होंगी, सूख जाएंगी, छाया वापस लेकर आनी है। पीपल कोई लगाता नहीं, भूतिया पेड़ माना जाता है कि इसके ऊपर यक्ष रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं, अपशुगुन होता है, जबकि ऐसा नहीं है। ये तुम सोचते हो ये मनुष्यों की सरकार है, नहीं, पृथ्वी जो है पेड़ों की सरकार है। कि हम लोग गाजा के ऊपर इतना कवरेज दे रहे हैं, 10 लाख लोग हमारे दिल्ली में मरे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, इसकी कोई कवरेज ही नहीं है। अगर फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को कूल नहीं बनाएंगे आप, लोग जाएंगे नहीं। आज किसान का जो बच्चा है वो किसानियत नहीं करना चाहता, वो जाके मॉल में जाके शॉपर स्टॉप पे परफ्यूम बेच लेगा 8,000 रुपए की तनख्वाह पे। How should we address you? Swami Prem Parivartan or People Baba? नहीं, आई थिंक पीपल बाबा वुड बी बेटर, क्योंकि अब तो हमारे रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स, बचपन के दोस्त सब पीपल बाबा ही बोलते हैं। पिछले 30 साल से लोग इसी नाम से जानते हैं। वैसे तो गुरुकुल में जब हम पढ़ने गए तो फिर स्वामी प्रेम परिवर्तन नाम रखा गया, और वही हमारा नाम पासपोर्ट पे, आधार कार्ड पे, पैन कार्ड पे तो वही, लीगल नेम तो वही है। लेकिन your legal name is Swami Prem Parivartan. Achha. My first name is Swami. Haan. Middle name is Prem. My surname is Parivartan. And your original name is? I come from a Jain family. Yeah. When I was born in Chandigarh, तो मेरा बर्थ सर्टिफिकेट पे आजाद जैन है। हाँ, तो लेकिन जब 6 साल की उम्र हुई तो फिर हम गुरुकुल में पढ़ने गए, तो वहाँ पर आचार्य जी ने हमारा नाम जो है, क्योंकि then I became a yoga teacher for yoga and meditation में, इसी में हम लोग एज अ योगाचार्य जैसे ट्रेनिंग होती है। हाँ. तो वो फिर हम तकरीबन 20-22 साल तक उसी नाम से पुकारे गए। लेकिन फिर जैसे जैसे पीपल वृक्षों के कारण हम बदनाम हुए तो लोगों ने पीपल बाबा नाम रख दिया, तो उसी नाम से अब जाने जाते हैं। So how did your journey start? I mean, from yoga to trees. I'm sure there is a holistic connection which we can come to later. But what have you studied? I'm a postgraduate in English literature. I taught for 28 years and that was my source of livelihood. लेकिन जो life थी वो तो livelihood है,
जो जिंदगी रही, लाइफ रही, वो 11 साल की उम्र से हम लोग टू बिगिन विद इट वाज पीपल वृक्षों के ऊपर काम करना शुरू किया। 11 साल तो एट 11? हाँ, क्योंकि नानी हमारे साथ रहती थी। तो नानी हमेशा ये कहती थी कि देखो बेटा, ये जो ग्लोबल वार्मिंग की बातें होती हैं तुम्हारे क्लास में, जब हम चौथी कक्षा में थे उस वक्त, तो स्पाइसेस मेमोरियल स्कूल, एक छोटा सा एलिमेंट्री स्कूल था किरकी कैंटोनमेंट में। फादर वाज पोस्टेड इन मिलिट्री हॉस्पिटल ओवर देयर। तो जब हम शाम को आते थे तो हम कहते थे हमारी टीचर जो मिस विलियम्स हैं वो हमें इतनी कहानियां सुनाती हैं बर्ड्स बीज बटरफ्लाइज की, और हमेशा कहती हैं कि उनका हैबिटेट खत्म हो रहा है, उनका घर खत्म हो रहा है, पक्षियों का घर खत्म हो रहा है, तितलियों का घर खत्म हो रहा है, सड़कों का चौड़े जो वाइडनिंग हो रही है, डेवलपमेंट वर्क्स हो रहे हैं, जो ओपन पब्लिक स्पेसेस थी वहाँ बिल्डिंग्स बन रही हैं, कॉन्क्रीटाइजेशन हो रही है, तो ग्रीन कंटेंट कम होता जा रहा है, सीमेंट का कंटेंट बढ़ता जा रहा है। तो नानी एक बड़ी प्यारी सी बात बोलती, कहती हाँ बेटा, धरती गर्म होगी, माटी गर्म होगी, खेत गर्म होंगे, सड़कें गर्म होंगी, तालाब गर्म होंगे, सूख जाएंगे, नदियाँ गर्म होंगी, सूख जाएंगी, छाया वापस लेकर आनी है, छाया वापस लेकर आना। वो हमेशा ये एक बात बोलती थी। तो वो बात बहुत गहरे में, जैसे आपको प्रोग्रामिंग होती है आपकी, एक बहुत गहरे में एक कहीं फाइल बन के रह गई ब्रेन के अंदर। सो जब हम ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 साल की उम्र से ही ये ऐसे ऐसे होता है। तो हम जब इलाहाबाद में गुरुकुल में पढ़ने गए तो वहाँ भी आचार्य जी भी जो हैं वो भी यही बात करते रहते, पेड़ पक्षियों की बात करते रहते थे। तो वहाँ पर बहुत सारे पीपल के वृक्ष थे। हम लोग गंगा जी के घाट पे बैठ के हमारी जो भी शिक्षा जो भी होती थी तो टाट और बोरी बिछा के वो पीपल के नीचे पढ़ते थे। धीरे धीरे क्या हुआ कि वहाँ पर बिल्डर्स आए और प्राइम प्रॉपर्टी थी तो लोगों ने खरीद लिया वहाँ पे। तो वो आश्रम का बहुत बड़ा हिस्सा बिक गया और हमारे देखते देखते 900 पीपल और बड़ के पेड़ काटे गए। तो बहुत गहरा जख्म था एक तरीके से आपकी कॉन्शियसनेस में, आपके जहन में, कि जिन पेड़ों के नीचे बैठ के हम बड़े हुए अब वो नहीं रहे। और जब नानी ने ये जनवरी मतलब मेरे को डेट याद है, जनवरी 26 1977 की बात है कि नानी ने कहा देखो बेटा, पढ़ लिख के तुम, आई वॉज गुड इन स्टडीज, सो पापा तो यही चाहते थे बीइंग अ डॉक्टर कि या तो फौज में जाओ या डॉक्टर बनो, या तो फौजी डॉक्टर बनो, वो यही चाहते थे और सही भी था उनका। लेकिन नानी का ये कहना था कि डॉक्टर इंजीनियर तो सभी बन सकते हैं अगर थोड़ा बहुत पढ़ाई में ठीक हो, थोड़ा बहुत रिसोर्सेज हो, मेहनती हो, लेकिन छाया के ऊपर काम करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है देश में जो फुल टाइम इस चीज के ऊपर काम करे। वो आपको बचपन से ये कह रही थी कि छाया पे काम करना। हाँ, छाया पे काम करो। तो अब छायादार कौन से वृक्ष होते हैं? नीम होता है, बड़ होता है, पिलखन होता है, गुलर होता है और आपका पीपल होता है। तो उन्होंने, नानी ने हमें सबसे पहले तो ये बताया कि देखो तुम्हारे पास इतने पैसे तो है नहीं कि रोज जाके नर्सरी से पौधे खरीद के तुम डालोगे, तो पौधे भी अपने उगाओ और खाद भी अपनी बनाओ। तो उन्होंने सबसे पहले, एक्चुअली देखा जाए तो सबसे पहले उन्होंने मिट्टी पे काम करना सिखाया मुझे 6 साल की उम्र में। द फर्स्ट सैपलिंग जो मैंने प्लांट किया था वो 11 साल की उम्र में, तो इट वॉज अ इंटरवीनिंग पीरियड ऑफ 5 years। तो वो 5 साल में मैंने बायोडाइवर्सिटी के ऊपर खूब पढ़ाई की। वो बड़ी अच्छी अच्छी किताबें खरीद के देती थी, खुद बैठ के गोद में मुझे कहानियाँ सुनाया करती थी। तो हम लोग चंडीगढ़ जाया करते थे क्योंकि नानी भी चंडीगढ़ में रहती थी। तो वहाँ सुखना लेक है, तो वहाँ 150 साल पुराना एक वृक्ष है वहाँ पर पीपल का। तो उसके नीचे बैठ के हमेशा मुझे बताया करते थे कि देखो इसकी शाखाएं कितनी बड़ी हैं, जहाँ जहाँ पीपल उगता है तो वो जो भी है, फिर उसकी कहानियाँ, पंचतंत्र की कहानियाँ, शास्त्रों में क्या लिखा गया है, भागवत में क्या लिखा गया है पीपल के बारे में। और एक बड़ी गजब की बात वो जो बोलती थी, और जो खैर आज तक सही है, पीपल कोई लगाता नहीं है, पीपल कोई लगाता नहीं है क्योंकि इनऑस्पिशियस माना जाता है, भूतिया पेड़ माना जाता है कि इसके ऊपर यक्ष रहते हैं, चुड़ैलें रहती हैं, विच होती है, इसमें ये होता है, अपशुगुन होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि लोग अपने बंगलोज में, फार्म हाउसेज में, अपने फैक्ट्री प्लॉट में पीपल को अच्छा नहीं मानते तो कटवा देते हैं, उसमें तेजाब डलवा देते हैं, हल्दी डलवा देंगे, मतलब हींग का पानी डलवा के उसको मार देते हैं, जो भी है। तो लोगों में एक फॉर रिलीजियस और मैथोलॉजिकल और फॉर सुपरस्टिशन एक है, जबकि ऐसा नहीं है। द ओनली रीज़न इज़ के जो समझ आया 11 साल की उम्र में, जो
नानी ने समझाया कि इसकी जड़ें बहुत विशाल होती हैं. इट हैज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रूट सिस्टम्स. तो ये पानी की तरफ दौड़ती हैं. तो जहाँ कोई नाली होगी, कोई किचन की नाली है, सुअर की नाली है, तो उसको चौक कर देती हैं. दैट्स द ओनली थिंग. बाकी इट्स अ फॉरेस्ट्री. इसको तो शहरों के अंदर लगाना ही नहीं चाहिए जब तक वो बड़ा गार्डन ना हो, बड़ा पार्क ना हो, बड़ी जगह ना हो. इनफैक्ट जितने भी आप पीपल देखते हैं पिछले 40-46 साल से, तो जैसे मजाक करते हैं, हमारी टीम्स भी मजाक करती हैं, या तो वो पीपल बाबा ने लगाए या ब्रिटिशर्स लगा के गए. जो अंग्रेज जो 1947 से पहले के लगे हुए वृक्ष हैं, नहीं तो उसके बाद कभी, जैसे अगर हम दिल्ली राजधानी भी लें, अब दिल्ली राजधानी में तो हमें आए हुए सिर्फ 30 साल हुए हैं, क्योंकि हम साउथ में काम कर रहे थे. साउथ में बहुत काम किया, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में बहुत काम किया, वेस्टर्न घाट्स में हमने काम किया. लेकिन पापा की पोस्टिंग के कारण मैं दिल्ली आया था, तो बस दिल्ली भाग गया हमको, हम दिल्ली वाले हो गए. तो दिल्ली का ही अब आधार कार्ड है, यहीं की वोटर आईडी है. तो दिल्ली में 30 साल से हमने 17 लाख के करीब नीम और पीपल हम. I heard a very interesting folk story about, since you're talking of people trees, that in markets earlier, the folk lore is that people trees were planted because it is considered that you should not cheat under a people tree. Yes. So it's usually found in markets so that the shopkeepers and all, nobody is cheating. Is that Correct. true? Yes, it is true. It is true. पीपल जो है, देखिए, अगर आप लॉर्ड बुद्धा के बारे में देखें, सिद्धार्थ बुद्ध जो हुए, वो भी पीपल के नीचे बैठे, महावीर जी बैठे, तीर्थंकर बैठे, जैनियों के जितने भी महापुरुष हुए, फिर नानक जी बैठे, कबीर बैठे, है ना. और लॉर्ड कृष्णा ने भी जब अपने प्राण त्यागे, जब उनके एंकल में एरो लगी थी, तो उन्होंने भी अपने प्राण पीपल के नीचे त्यागे. पीपल हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस थिंग. एंड अगर हजारों करोड़ों कहानियां हैं, दे कांट बी स्मोक विदाउट फायर, यू नो. तो कुछ तो है. इसको साइंटिफिक टर्म्स में ऐसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं 46 ईयर्स में मैंने पीपल के साथ काम किया है. 1,27,00,000 पीपल जो मेरे जिंदा हैं, लगाए तो 1.5 करोड़ के ऊपर है. 1,27,00,000 जो ऑडिटेड है, हमारे पास वेरीफाइड, हम क्योंकि हमारे ऑडिट्स होते रहते हैं, थर्ड पार्टी ऑडिट्स होते हैं, तो हमारे जो वेरीफाइड है. और 74 लाख हमारे नीम के पेड़ हैं, 28 लाख हमारे फ्रूट ट्रीज हैं. तो तकरीबन हमारे 2.5 करोड़ के करीब. और इसमें दिल्ली में कितने लगाए हैं? दिल्ली में 17 लाख. अच्छा. 17 लाख टोटल. मतलब इसमें शीशम है. अच्छा. और नीम है. सबसे ज्यादा नीम लगा है. नीम सबसे ज्यादा लगा है, फिर शीशम लगा है, फिर बकैन हमने बहुत लगाया, फिर एक वृक्ष होता है जैसे फाइकस बेंजामिना होता है, वो बहुत लगाया हमने सड़कों पे, फिर पुतरुन जीवा बहुत लगाया. लेकिन जो सबसे ज्यादा सर्वाइवल रेट हमने देखा वो नीम, शीशम और पीपल का रहा. पीपल वैसे भी लोग उखाड़ते नहीं हैं, काटते नहीं हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि इसमें वो है. जब तक कोई डेवलपमेंट वर्क ना हो, फिर तो क्रेन्स आते हैं, अर्थ मूवर्स आते हैं, उसको काट ही देते हैं. पीपल के अराउंड जो स्टोरीज हैं इंडियन माइथोलॉजी में या रिलीजियस टेक्स्ट में, काफी स्टोरीज पीपल के सेंटर. मैं इसको इस तरह से समझाना चाहूँगा कि जो देखिए 2 टाइप की कॉन्शियसनेस होती हैं. एक होती है मनुष्य चेतना, जो हमारी है, हम सब की है, होमो सेपियंस की है मनुष्य चेतना. This is considered to be the acme of evolution. You know, this is a pivot point of. एक है जो 420 मिलियन ईयर से एग्जिस्ट कर रही है, जिसने पूरे संरचना पूरी पृथ्वी की, और वो है वनस्पति चेतना, मतलब वेजिटेटिव कॉन्शियसनेस जो है वेजिटेबल्स की, और आई मीन टू से ग्रीन कॉन्शियसनेस. अब उसमें भी कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कीस्टोन स्पीसीज होती हैं, जैसे बड़ हुआ, पीपल हुआ. मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ. फॉर एवरी कंट्री, एवरी रीजन, एवरी जोग्राफी, एवरी टेरिटरी, एवरी जोन, एवरी बायोडाइवर्सिटी जोन, अलग अलग प्लांट स्पीशीज होती हैं. हमारे देश में बड़ और पीपल का बहुत बड़ा महत्व है. उसी तरह से नीम का बहुत बड़ा है, सेमल का है, हमारा शमी का पेड़ है, हमारे आम के पेड़ हैं, जो भी हैं. तो अब हम लेते हैं सिर्फ जो मेन है, बड़ और पीपल को लेते हैं. आई फील जैसे हम आज बात करते हैं, एआई की बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ये अभी जुमा 10 साल पुरानी चीज है. आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग लैंग्वेजेस की बात करते हैं. मेरा ये मानना है कि
पीपल बर्ड की जो है उसकी एक अपनी इंटेलिजेंस है। मैं उसको पीआई बोलता हूँ, पीपल इंटेलिजेंस है, ठीक है। और ये है 420 मिलियन ईयर्स ओल्ड। अब मुझे ये बताइए कि जो टेक्नोलॉजी करोड़ों साल जिंदा रही और आज भी सरवाइव कर रही है, और आज भी जब त्राही त्राही मचती है ऑक्सीजन की तो सब लोग पीपल वृक्ष की तरफ देखते हैं, तो वो टेक्नोलॉजी ज़्यादा बेहतर हुई या हमारी 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी हुई, जिसमें स्कैम्स भी हो रहे हैं, फ्रॉड्स भी हो रहे हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पे एल्गोरिदम्स जो हैं पूरा, और पीपल ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तो एक जननी है। 140 प्रकार के पक्षी इस पे जाते हैं, कई टाइप के वॉस्प जाते हैं, कई टाइप के इंसेक्ट्स हैं, एक पूरी बायोडाइवर्सिटी है इसकी। अगर आप इसको सिर्फ पीपल के ऊपर आप करना शुरू करें तो मैं 7 दिन की पूरी कथा कर सकता हूँ पीपल के ऊपर। तो इतना गजब का इसका साइंटिफिक मतलब इट्स एनसाइक्लोपीडिया ऑफ नॉलेज, यू नो। सिर्फ एक वृक्ष का आप सिर्फ पीपल बर्ड को ले लीजिए, उसके ऊपर 1 महीने की आप पूरी की पूरी आप कॉन्वर्जेशंस कर सकते हैं, डिस्कशंस कर सकते हैं, और फिर भी खत्म नहीं होगा। मतलब इतना वास्ट इंटेलिजेंस नेटवर्क है ये। तो उसके लीफ की जो मॉर्फोलॉजी है, उसके जो जड़ों का तरीका है उगने का, जिस तरह से वो फॉरेस्ट को क्रिएट करता है, जैसे हमारी नानी कहा करती थी कि एक बड़े पीस ऑफ मैदान के ऊपर, एक जैसे खाली बंजर जमीन है, उसके ऊपर एक पीपल लगा दो या एक बड़ का वृक्ष लगा दो, और उसको 5 साल के लिए उसको ताला लगा दो उस जमीन को, और उसके अंदर कोई ना जाए। आप देखोगे 5 साल के अंदर अंदर वहाँ कम से कम 100 प्रकार की प्रजातियों के वहाँ पर बीज भी होंगे, मतलब पौधे होंगे, और बड़े बड़े वृक्ष होंगे, और पूरा जंगल हो जाएगा। एक पीपल एक जंगल को करता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पक्षी आते हैं, पक्षियों की ड्रॉपिंग्स होती हैं, एक्सक्रीटा होता है, जो पू होता है, उसके अंदर सीड्स होते हैं, है ना। तो जो फिग्स होते हैं, इट इज डेवर्ड बाय द स्क्विरल्स, जो उसके फिग्स होते हैं वो मंकीज भी खाते हैं, तो वो सीड डिस्पर्सल होता है। बड़ी गजब की साइंस है ये पूरी की पूरी। एंड मतलब इट्स अ माइक्रो फॉरेस्ट इन इटसेल्फ। पीपल जो है एक माइक्रो फॉरेस्ट है अपने आप में, इसीलिए उसको प्रधान वृक्ष बोला गया। हमारे शास्त्रों में उसे महाराज वृक्ष बोला गया, उसे वृक्षों का राजा बोला गया। हमारे भगवत गीता में भी पीपल को उसके ऊपर। सो हम लोग जब सोल्यूशन ढूंढते हैं पोल्यूशन का, और जब हम नेचर बेस्ड सोल्यूशंस की बात करते हैं, तो हम हमेशा इस बात को जिक्र करते हैं, क्लोरोफिल इज गॉड, है ना। मंदिर मस्जिद तो ऑक्सीजन देता नहीं आपको, चर्च गिरजाघर तो गुरुद्वारा आपको ऑक्सीजन नहीं देता। आपकी जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो कौन देता है? वो पत्ता देता है। पत्ता ही परमात्मा हुआ ना फिर तो। ऑक्सीजन तो वहां से निकलता है। इसीलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप हमसे बात कर रहे हैं। आज वृक्षों को निकाल दीजिए, आप ग्रीन कंटेंट पूरा निकाल दीजिए, क्लोरोफिल खत्म कर दीजिए, हम 2 या 3 मिनट का खेल है, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे हमारे। जब हम न्यूक्लियर ब्लास्ट की बात भी करते हैं, जब न्यूक्लियर एमिशंस की भी बात करते हैं, तो ये होता है कि पेड़ पौधे सारे खत्म हो जाते हैं उस एरिया के, और जैसे वो खत्म होता है तो मनुष्य जाति भी वहाँ की फिर सफ़र करती है। इसीलिए डिजीजेज होते हैं, जो भी हैं, डिफॉर्मिटीज आती हैं, है ना। तो ये है। सो हम इस चीज़ को, वो वाली जो इंटेलिजेंस है, जो नेचर की इंटेलिजेंस है, जो पीआई कह लीजिए, कॉस्मिक इंटेलिजेंस कह लीजिए, ओवरराइडिंग जो कॉस्मिक अम्ब्रेला है, जो अगर हम उसको एक्नॉलेज नहीं करते और हम अपनी ही चलाते रहेंगे कि हम जो हैं, हम तो इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे, वो डेवलपमेंट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि होमोसेपियन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन बढ़ रही है, कुछ ना कुछ तो हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि उसको रौंद के आप अपना क्रिएट करें। आपने बहुत कॉन्शियसली पीपल के पेड़ पे के साथ काम करना शुरू किया कि? मैंने कॉन्शियसली नहीं किया, क्योंकि नानी ने कहा तो मैंने किया। नानी आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। यस, एब्सोल्युटली। और एक बात हमारे आचार्य जी ने कही थी। हम 1977 में एक सदगुरु को मिले थे, तो आप लोग उनको ओशो के नाम से जानते हैं। तो हम बाद में लाइफ में जब वो वापस आए यूएस से, तो मैं 4 साल उनके साथ रहा। उन्होंने एक बात कह दी थी और वो मेरे जहन में फिर बैठ गई। उन्होंने कहा, तुम जानते हो पृथ्वी में कोई भी पीपल लगाता नहीं है। अगर पीपल ने तुमको चुना है एक अपने काम के लिए, तो कभी अहंकार मत करना कि तुमने पीपल को लगाया। पीपल हैज चोजन यू टू प्लांट इटसेल्फ। तो ये पेड़ों की सरकार है, वो हमेशा बोलते थे कि तुम सोचते हो ये मनुष्यों की सरकार है। नहीं, पृथ्वी जो है पेड़ों की सरकार है।
क्योंकि पेड़ों के कारण ही तुम जिंदा, पेड़ों के कारण ही ऑक्सीजन है, पेड़ों के कारण ही पक्षी हैं, पेड़ों के कारण ही कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ों के कारण ही जल है, पेड़ों के कारण ही सब कुछ है। तो ये पेड़ों की सरकार है। और पेड़ों की सरकार ने अगर तुम्हें चुना है, तुम तो डॉक्टर बनने जा रहे थे, तुम तो इतने अच्छे थे पढ़ाई में, आई एम 5 times गोल्ड मेडलिस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, तो इतने बावजूद तुम आज माली का काम कर रहे हो, यू आर अ रोड साइड गार्डनर। तो ये डेस्टिनी है, नहीं है तो बेटा और क्या है? What was the pull? मतलब क्या था कि जो आपको आई डोंट नो, मुझे आज तक नहीं मालूम। मुझे आज भी लोग कोई पूछते हैं, कभी कभी मेरे मदर फादर भी मुझे कभी कभी बोलते हैं कि बेटा अपने लिए घर बना लो, एक गाड़ी खरीद लो, तुम स्कूटर के ऊपर घूमते रहते हो, तुम्हारा सारी जीवन तुम्हारा पेड़ पौधों में निकला है, जंगल बनाने में निकला है, खेती बाड़ी में निकला है, किसानों के साथ 4 लाख लोगों को साथ लेके चलते हो, तुम अपना भी तो कुछ बना लो, बूढ़े हो रहे हो, 58 साल के हो गए हो, धीरे धीरे तुम्हारी भी। तो पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, जो पेड़ों की सरकार ने मुझसे काम करवाया है, अब पेड़ों की सरकार ही मेरा लालन पोषण करेगी। जब मैं रिटायर भी हो जाऊंगा, रिटायर तो इंसान को होना नहीं चाहिए कभी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इट विल लुक आफ्टर मी। सो आपकी एक जो अंडरस्टैंडिंग है वो नानी के कारण, गुरुओं के कारण, आचार्य जी के कारण, कुछ अच्छे मास्टर्स से हम मिले, दलाई लामा जी से हमारे जो गुफ्तगू हुई, दलाई लामा जी के साथ जो कॉन्वर्जेशंस हुई, एंड आई सॉ दैट अल्टीमेटली कोई भी मास्टर से हम बात करते थे, कहीं भी हम दर्शन करने गए, उनके पाँव छूने गए, थोड़ी देर उनके सानिध्य में बैठे, तो सब लोगों ने एक ही बात कही, दैट यू आर वेरी फॉर्चुनेट, काश हम तुम्हारी जगह होते, कि हमें पेड़ों की सरकार ने चुना होता कि हम ये वाले काम कर सकें। तो वो कहते हमें एक व्यक्ति बता दो पूरे प्लेनेट पे जो ये फुल टाइम काम करता हो। I was in fact wondering, and you know that to pursue a passion like this, which is not for self. मैम, इट्स नॉट अ पैशन। लोग सोचते हैं ये पैशन है। मैं सच्ची कह रहा हूँ, ये कोई पैशन नहीं। यू नो, कुछ ऐसे ब्रह्मांड की कुछ ऐसी चीजें होती हैं, शक्तियां होती हैं, वो आपसे काम करवा रही होती हैं। अदरवाइज मैं आपको बता रहा हूँ, इट इज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल टू डू व्हाट हैज बीन डन। नहीं, मैं मानती हूँ बिल्कुल, बट यू नो कि अपने बारे में ना सोच के, नहीं, आप अभी आपने लाइवलीहुड की बात करी कि अच्छा, मैं अपने लिए क्या बना रहा हूँ। इस चीज को मैं इस तरह से समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि आपका पैशन आपके है, बच्चे हैं, आप एनवायरमेंट। हाँ, मेरी बेटी है, 29 years old है, एंड वो नहीं कहती कि आपने पहले कहती कुछ थी, बच्चों की डिमांड्स होती है, माँ बाप का समझाना अलग चीज होती है, बच्चों की डिमांड्स अलग चीज होती है। पहले कहती थी, बहुत कहती थी, मेरी वाइफ भी बहुत कहा करती थी। फिर क्या हुआ कि आज से 8 साल पहले उसको अस्थमा अटैक हुआ, मेरी बेटी को, और वो दिन गया और आज तक पापा और लगाओ, क्योंकि उसको बात समझ आ गई। तो वो दिल्ली आई थी मिलने मुझसे, और उसको दिवाली के टाइम पे स्मॉग पकड़ ली उसको, एंड यू नो, तो जब बीतती है तब इंसान को समझ आता है कि यू नो ये क्या है। और जैसे जैसे एनवायरनमेंट के ऊपर, वो भी पढ़ी लिखी बच्ची है, तो वो भी अब पढ़ती है, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ती है, सुनामीज के बारे में, इतना कुछ हो रहा है। आप देख रहे हैं पूरा, इतना बुश फायर्स हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स हो रही हैं। अब उसको ये होता है, नहीं पापा, इट हैज टू बी डन, इट नीड्स टू बी डन, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट। यू नो, दिल्ली की हम लोग बातें कर रहे थे आप ये समझने के बाद दैट दिल्ली, यू नो, यहाँ पे बहुत सारे different species of trees हैं, yes, but we have basically benefited a lot from, but they're all foreign species, most of them, many are foreign species, and in a way, and you know, it was brought in by the Mughals and the British, and we have benefited from such indiscriminate seeding as they were experimenting. Absolutely. But you know, Delhi के original पेड़ कौन से हैं? Do we know anything about that? Of course, absolutely. मैं आपको एक बात समझाता हूँ। कोई भी ज्योग्राफी, कोई भी टेरिटरी हो, जहाँ पर पॉपुलेशंस की माइग्रेशंस हो रही हों, पॉपुलेशंस की आवागमन है जैसे, और दिल्ली तो एक बहुत बड़ा, मतलब मैं समझता हूँ वर्ल्ड का वन ऑफ दोज ब्यूटीफुल जोन्स है, जहाँ पर मुगल बादशाह से लेके, मतलब ब्रिटिशर्स और ना जाने कौन कौन नहीं आया। और आज भी अगर आप देखो तो हमारे पूर्वांचल के, हमारे बिहार के, हमारी पॉपुलेशन जो है माइग्रेट करके आती है। इट्स वन ऑफ द मोस्ट कॉस्मोपॉलिटन रीजन्स। अब ये सोचना कि यहाँ पर, अच्छा कहते हैं ना दिल्ली का अपना कुछ भी नहीं है। दिल्ली की 2 चीजें अपनी थी, एक यमुना इकोसिस्टम और एक अरावली इकोसिस्टम। अरावली इकोसिस्टम में तो सारे फार्म हाउस बन गए,
ठीक है। और यमुना जी का इकोसिस्टम में वो सारी एनक्रोचमेंट हो गई, वहाँ पर सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हो गई, है ना। अब यमुना जी छोटी सी नाला हो जाती है, पानी का हाईवे नदी होती है। जब पानी आता है तो हम चिल्लाते हैं कि ट्रॉमा में चली जाती है दिल्ली के, बाढ़ आ गई। एक्चुअली बाढ़ नहीं आई है, नदी में पानी आया है, जो इस बार हमने देखा इस साल। हाँ, है ना। अब क्या है कि 10 साल बाद अगर पानी देखोगे, जल देखोगे, तो आपको लगेगा परले आ गई। एक्चुअली नहीं है, इट इज अ वेरी हेल्दी साइन। इट्स अ वेरी साइंटिफिकली देखा जाए, इट्स अ वेरी हेल्दी साइन कि नदी के अंदर पानी आया, बस इतना ही है। शाहजहां जी ने जब लाल किला बनाया था तो उस समय आपकी जो विड्थ होती थी यमुना जी की, वो ये तो डॉक्यूमेंटेड है, मैं नहीं बोल रहा। हाँ, मैं तो 400 साल था नहीं पहले। तो हम तो जो मैं हिस्ट्री बुक्स में से पढ़ के, जो गेजेट में लिखा हुआ 4 किलोमीटर्स की विड्थ होती थी यमुना जी की उस समय, है ना। तो ताजमहल तक यही विड्थ चलती थी पूरी। तो अब क्या है, अब वो आधा किलोमीटर भी नहीं, आधा किलोमीटर तो क्या 200 मीटर भी नहीं रही। हाँ, और बहुत कहीं पे जाके आधा किलोमीटर कहीं जाके सिर्फ जैसे आप कालिंदी कुंज जाते हैं तो वहां थोड़ा बहुत, थोड़े दिनों के लिए 350 मीटर्स की विड्थ है, 400 मीटर्स की विड्थ है। तो क्या है, उसके अंदर जब पानी आता है तो हम लोग समझते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत एक बड़ा गजब का चीज है कि हम लोग सारी डेवलपमेंट ह्यूमन सेंट्रिक रखते हैं। हम सिर्फ इंसान की इकोनॉमिक बेनिफिट, इंसान का प्रॉफिट, इंसान की रिहाइश, इंसान की हैबिटेशन, और फिर उसके अंदर पॉलिटिक्स का तड़का कि वोट के लिए हम क्या क्या चीजें करें और कैसे कैसे इलेक्शन स्पेसिफिक चीजें होती हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा। अगर यही चीज अगर हम नेचर को बीच में रख के करें, बायोडाइवर्सिटी को बीच में रख के करें, हमारे जो ब्लू डॉट्स है, ग्रीन डॉट्स हैं, ब्लू डॉट्स आपका पानी हो गया, ग्रीन डॉट्स आपकी हरियाली हो गई। हरियाली और जल को बीच में रख के हम सारी पॉलिसीज अपनी बनाएं तो हम भी हेल्दी रहेंगे, नेचर भी हेल्दी रहेगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन हम कभी भी अपनी हरियाली को, अपनी एवरग्रीन स्पेसेस को, परमानेंट ग्रीन स्पेसेस को हम इफेक्ट नहीं देते। अगर ऐसा होता तो अरावली आज भी बचा हुआ होता। फरीदाबाद का पूरा अरावली, गुड़गांव का पूरा अरावली, दिल्ली का पूरा अरावली सब खत्म हो गया। थोड़े थोड़े पैचेस बचे हैं, वो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना, आप जानती हैं, पूरे सब लोग जानते हैं उस चीज को। तो ये चीज समझनी है। अब आती है बात स्पीशीज की, प्लांट स्पीशीज की। देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट, ये एक्चुअली फर्स्ट टाइम किसी ने मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है और मैं इस चीज के बारे में बहुत बार डिस्कशन करने की कोशिश करता हूं, लेकिन हमें चुप करा दिया जाता है इस चीज़ के ऊपर कि अरे ये इतनी बड़ी कौन सी बात है, इतनी पॉपुलेटेड दिल्ली है, यहाँ तो चलो कुछ भी होता है, चलने दो। नहीं, देयर इज वन स्कूल ऑफ थॉट कि सिर्फ और सिर्फ इंडिजिनस स्पीशीज लगाई जानी चाहिए। ठीक है, खिरनी है, आपके रोंज है, ठीक है, हमारा अमलतास यहाँ का है, हमारा आंवला यहाँ का है। देयर आर नियरली 252 प्लांट स्पीशीज जो हमारी एंडेमिक है, जो हमारे यहाँ की है, दिल्ली एनसीआर की खास हैं। हमारे 50 स्क्वायर किलोमीटर का रेडियस अगर आप कनॉट प्लेस से भी ले लेते हैं 50 to 100 स्क्वायर किलोमीटर का, तो वो यहाँ है। सो अवर बायोडाइवर्सिटी हैज बीन डिसाइडेड बिकॉज ऑफ राजस्थान, because of some parts of Madhya Pradesh, because of Uttarakhand, because of Himachal and adjoining Haryana and Punjab. ठीक, दिल्ली बेचारी की अपना कुछ भी नहीं है। सो दिल्ली का मौसम भी कैसे होता है, हिमाचल में हिमपात हुआ, वहां पर स्नोफॉल हुई तो यहाँ ठंडी हो गई। उत्तराखंड में थोड़ी बारिश हुई तो उसकी बौछारें यहाँ पर आ गई। वहां पर पानी छूटा तो हथनीकुंड बैराज में उन्होंने पानी छोड़ा तो यहाँ पर फ्लड आ गया। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड, इट इज रिमोट कंट्रोल्ड बाय द एडजॉइनिंग स्टेट्स एंड एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स। अब ये चीज समझने की बात है कि यू कैन नॉट हैव अ फिक्स्ड लिस्ट ऑफ इंडिजिनस स्पीसीज फॉर दिल्ली। व्हाई? क्योंकि इतने पॉपुलेशंस आई हैं, इतने राजा लोग आए, इतनी गवर्नमेंट्स चेंज हुई, उनको जो समझ आई देश काल पात्र के हिसाब से उस समय उन्होंने जो उनको समझ आया उन्होंने किया। हुमायूं साहब ने किया, शाहजहां साहब ने किया, और सबसे बड़ा शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी 1540 और 1545 के बीच में वो बादशाह थे। तो उन्होंने पूरी जीटी रोड बनाई, सासाराम बिहार से लेकर लाहौर तक उन्होंने पूरी सड़क खींची। वहां पर उन्होंने 1,60,000 पीपल लगाए। तो ये पूरा हिस्ट्री में डॉक्यूमेंटेड हैं ये चीजें। उन्होंने फ्रूट ट्रीज बहुत लगाई, उन्होंने सराय बनाए, उन्होंने दिल्ली वाज आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ इट।
बिल्कुल। अंग्रेज आए, अंग्रेजों का एक अपना, ब्रिटिशर्स आर वेरी गुड इन गार्डनिंग, हाँ, है ना? उन्होंने तो एक्सपेरिमेंट बहुत सुंदर किया है बनी, यहाँ पे। आप सुंदर नर्सरी देखिए, तो ऑस्ट्रेलियन एक वो थे, वो स्पीशीज बहुत लेकर आए थे, एक शायद उनका नाम लैंकास्टर था, सुपरिटेंडेंट थे उस वक्त हॉर्टिकल्चर के, तो 1942 में उन्होंने बहुत सारी स्पीशीज लेकर आए थे वो। आप जब हमारा ल्यूटेंस डेली डिजाइन हो रहा था, उस समय ल्यूटेन साहब ने जो स्पीसीज उन्होंने गजट में लिखी थी, ब्रिटिश का पार्लियामेंट एनेक्सी में किताब है पूरी, उसके अंदर पूरा लिखा हुआ है। मैं वही कह रही थी कि when we took over these species, this actually benefited us being open-minded and adapting these trees as our own. अब आप ये सोचें कि अगर सब लोग साइंटिस्ट कुछ ऐसे कहें कि नहीं पूरे आपकी दिल्ली की सड़कों पे खिरनी होनी चाहिए, दिल्ली की सड़कों पे अमलतास लगा होना चाहिए, दिल्ली की सड़कों पे रोंज होना चाहिए, दिल्ली की सड़कों पे ये होना चाहिए, वो नहीं हो सकता, बिकॉज अब मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूँ, everything is changing, everything is evolving, humans are evolving, technology is evolving, हवा भी evolve हो रही है। आप 100 साल पहले जो पौधे लगा रहे थे सर, 100 साल पहले वाला टेम्परेचर है? नहीं है। 100 साल पहले वाली विंड स्पीड है? नहीं है। 100 साल पहले वाली हाइड्रोलॉजी और हमारी ह्यूमिडिटी है? नहीं है। 100 साल पहले की हमारी इरिगेशन, जो जिस तरह का रेनफॉल पैटर्न था, नहीं है। अब आप देखो, मैं सिर्फ एक रेनफॉल की बात लेता हूँ, इसमें आपका एक छुपा हुआ क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि दिल्ली का इतना पोल्यूशन जो है, इसका कैसे हो रहा है? वो पता क्यों? बाद में बात करने वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अब मैं आपको रेनफॉल पैटर्न के बारे में समझाता हूँ। मैं जब दिल्ली आया था 1992 मई में आया था यहाँ पे, फिर उसके बाद हम पूरा भारतवर्ष हम भ्रमण करते रहे, काम करते रहे, आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, BSF के लिए हमने बहुत सारे जंगल लगाए, बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन दिल्ली हमारा बेस कैंप रहा। मैं यहीं पर ही, अपना सामान मेरा यहीं था, तो मैं वापस आता था। मैंने एक चीज़ नोट की थी, आज से 20 साल पहले, हम 30 भी नहीं कह रहे, 20 साल पहले, 20 साल बिल्कुल, नए साल पे बारिश होती थी, ठीक है? अब आप सुनते जाइएगा ये। अब हम, क्योंकि ये बहुत फिक्र करते हैं कि दिल्ली धुलती नहीं है, इसलिए इसका स्मॉग और पोल्यूशन, ये ऐसा नहीं है। उस वक्त भी पोल्यूशन हुआ करता था, लेकिन फेस वॉश होता रहता था, दिल्ली धुल जाती थी, पहली तारीख को होता था। फिर आप देखो लोहड़ी वाले दिन, हमेशा बारिश होती थी, मकर संक्रांति वाले दिन, अगर मैं कहीं गलत हूँ मुझे प्लीज बताइएगा, ठीक है? 23 जनवरी को जब रिहर्सल होती थी रिपब्लिक परेड की, तो वो छातों के नीचे होती थी हमेशा। 26 जनवरी की पुरानी जितनी ब्लैक एंड व्हाइट, शुरू में 1 घंटे बारिश जरूर, चाहे वो नेहरू साहब थे, गांधी जी थे, जो भी, सॉरी नेहरू जी थे, या कोई राष्ट्रपति बैठे होते थे, या प्रधानमंत्री बैठे थे, आप देखेंगे अम्ब्रेला, काले वाला अम्ब्रेला लेके बैठे होते थे। क्यों? बारिश होती थी। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखिए 29 और 30 जनवरी के पास एक छोटी सी बारिश होती थी। फिर आप आते हैं फरवरी में, 12, 13, 14 को एक बार, क्योंकि हम तो इस चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, तो हम नोट्स बनाया करते थे कि बारिश कब कब आएगी, तब तक हम नहीं, उसके बाद फिर मौसम चेंज हो जाता था, हम अपनी प्लांटेशन करेंगे उस वक्त, रिदम जो थी हमारी, मोमेंटम जो था, हम बारिश के कैलेंडर के हिसाब से करते थे, ताकि हमें मेहनत ना करनी पड़े, हमें जाके बाल्टियों और मगों में जाके पानी ना डालना पड़े। फिर आप आती है छोटी होली, छोटी होली पे पक्का बारिश, छोटी बड़ी होली जो भी आप कह लें, जब भी बारिश है हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होगी ही होगी। आजकल हम रेन डांस करते हैं, आजकल मॉल्स में रेन डांस करते हैं, है ना, लगा के। हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारी कॉन्शियसनेस वही है कि बारिश आती थी, बारिश आती थी, ठीक है? फिर उसके बाद 13 अप्रैल का जब बैसाखी होती थी, पंजाब में भी बारिश होती थी, हरियाणा में भी बारिश होती थी, दिल्ली में भी क्षेत्र में बारिश होती थी, ठीक है? अच्छा, मई का महीना लीजिए, मई का महीने में हमने नोट किया 13, 14, 15 मई को बारिश एक दिन होती थी। ये गर्मी का मौसम होता था, दिल्ली में खूब बढ़ जाती थी, लू चलती थी, सब कुछ होता था, अप्रैल के एंड में लू चलनी शुरू हो जाती थी। फिर आपका जून में 1-2 बारिशें होती थी, फिर जुलाई में पूरा मानसून आता था, फिर चौमासा होता था, 4 महीने बारिश होती थी। सितंबर 28 तक आपका मानसून रहता था, ठीक है? फिर उसके बाद छोटी होली, जब आप दशहरे पे, रामलीला पे हम लोग देखने जाते थे, तो उस समय हम हाफ कोट पहन के जाते थे और छाता लेके ठंड होती, फिर दिवाली पे बारिश होती थी, क्रिसमस से बड़ा दिन बोलते थे, बड़े दिन से पहले 1-2 दिन पहले बारिश होती थी। मैम, ये सारा का सारा रिदम जो है बारिश का, वो खत्म हो गया दिल्ली का।
यही प्रॉब्लम है दिल्ली की। और वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि आपकी कैनोपी खत्म हो गई, आपकी हरियाली और बारिश ये कनेक्टेड होते हैं। इनफैक्ट पर दिल्ली ने काफ़ी एफॉरेस्टेशन देखा है वेस्ट, चाहे आप एशियाड की गेम्स की बात उस टाइम की बात करें या जब ये सब इवन जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और उससे पहले भी दिल्ली को ग्रीन कैपिटल ऑफ इंडिया का खिताब मिल गया था। बट कहीं पे हमने, अब जैसे सेंट्रल विस्टा डिस्ट्रॉय हुआ, हमने कहीं पे ये छोड़ दिया। मुझे याद है कि 3 साल पहले शायद अनफॉर्चुनेटली मैं एक ग्रुप का पार्ट थी जो मथुरा रोड पे, वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी हुआ करती थी और वहाँ से जो पूरा ट्रीज, इतने पुराने जामुन के ट्रीज वो सब, तो एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स के साथ जो वहाँ के रिहाइश करने वाले थे, सब हमने काफ़ी मोर्चा बनाया, निकाला, बट अनफॉर्चुनेटली हम हार गए, सारे पेड़ काट दिए गए। और इसको आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं? मतलब कहीं कहीं तो देखा है कि ऐसी सोच थी कि बैलेंस हो गया और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि आप पुराने वृक्षों को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं? नहीं, वो तो रिप्लेस ही नहीं कर सकते। मैं कह रही हूँ डेवलपमेंट। अच्छा, अब हम आपकी एक पॉइंट लेते हैं, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान, क्योंकि मैं शीला दीक्षित जी के करीबी था, हम लोगों ने चिल्ला सिटी फॉरेस्ट हम लोगों ने बनाया, वो बहुत इंटरेस्टेड थे, उसी वक्त तो शायद हमें ग्रीन कैपिटल का खिताब मिला था कि इन्होंने बहुत लेकिन हुआ क्या, अब मैं आपको बताऊं, कॉमनवेल्थ के कारण, मैं उनकी नहीं बात कर रहा, मैं नीचे वाला, तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट जैसे पेड़ लगाए तो क्या होता है, गमले लाए गए, ये किया वो। देखिए मैम, गमलों से परमानेंट ग्रीन्स नहीं आते। नहीं बिल्कुल है ना। अगर आप सोचें फाइकस बेंजामिना लगा देंगे आप, और फिर उसके बाद क्या होता है, कोई पानी देने नहीं गया, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स खत्म हुए टैंकर गायब हो गए, है ना। मैं ऑनेस्टली आपको एक बात बताता हूँ, तो बड़ा अफसोस होता था। हम तो बहुत खुश हुए, क्योंकि हमारे जैसा व्यक्ति जब देखता कि हरियाली बढ़ रही है एक शहर की, हमारे लिए तो ये गदगद होने की बात थी। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हुआ, महीने 40 दिन के अंदर सारे पौधे सूख गए, फिर उनको आके किसी ने उखाड़ दिया, कोई उखाड़ के वो नर्सरी वाले उठा के। विजन भी चाहिए ना, आप शॉर्ट टर्म पे तो इसकी बात नहीं कर सकते। तो इसका तरीका ये होता है कि आप कुछ स्पेसेस को निर्धारित कीजिए, उसको एवरग्रीन स्पेसेस रखिए। परमानेंट ग्रीन्स जब तक आपके पास नहीं होंगे, जैसे यमुना जी का आपका एरिया है, यमुना जी का ठीक है, जहां पर अब बन गया तो बन गया, झुग्गी झोपड़ी बन गई, कच्ची कॉलोनियां बन गई, लेकिन जो बाकी एरिया बचा है अभी भी वहाँ 60% एरिया। जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली का कैनोपी बढ़ाना चाहिए, तो अभी अगर हम दिल्ली को देखें, जो हमारे पास एरियाज हैं वही खाली एरियाज में प्लांटेशन करके बढ़ाना चाहिए। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दिल्ली में आप मुझे 1 बिलियन सैपलिंग्स दीजिए, मैं फिर और मांगूंगा आपसे। आप कहाँ, अगर मैं आपको 1 बिलियन, आप कहाँ? अच्छा, आप लोग दिल्ली कैसे जानते हैं? आप लोग दिल्ली जानते हैं रिंग रोड और आउटर रिंग रोड। आप दिल्ली जानते हैं कि आप जोरबाग से साउथ एक्स चले गए, साउथ एक्स से मयूर विहार आ गए, मयूर विहार से आप जहांगीरपुरी चले गए। तो आप सिर्फ रिहायशी एरिया देख रहे हैं। दिल्ली का एरिया कितना है? 14,624 स्क्वायर किलोमीटर। ये मालूम है कितना बड़ा एरिया? इट इज नियरली हाफ ऑफ 60% ऑफ कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इतना एरिया खाली पड़ा है, इतना। अच्छा, हम लोग तो स्कूटर मोटरसाइकिल पे सारा दिन घूमते रहते हैं, हम तो दिन में कम से कम 200 किलोमीटर चलते हैं, तो आपकी नज़र जो होती है फिर वो खाली एरियाज पे जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आपकी मास्टर प्लान के हिसाब से जो अर्बन एरियाज हैं, आपको वो देखो, जो फ्यूचर जहाँ प्लानिंग करनी है बिल्डिंग्स की, आप उसको मार्क कर लीजिए, लेकिन जो बाकी एरिया है विच इज कमिंग अंडर हेवी एनक्रोचमेंट, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल विल की प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली ये पॉलिटिकल पोल्यूशन है, ये कोई पोल्यूशन ऐसी नहीं है। अगर अच्छा, मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात बताऊं ना, एक मैं आपको बात बताऊं, मैं इस चीज से बहुत डिफर करता हूं जब लोग इस चीज से, क्योंकि मैंने 63 कंट्रीज घूमा हूं मैं। ये जो हर बात पे हम लोग अपनी पॉपुलेशन को दोष देते हैं, हर बात पे हम लोग लोगों पे डाल देते हैं, लोगों की सिविक सेंस नहीं है, लोगों में ये नहीं है, लोगों में वो नहीं। मुझे एक बात बताइए, हमारे यही लोग जब सिंगापुर में जाते हैं, यही लोग हमारे कनाडा जाते हैं, यही लोग हमारे यूएस जाते हैं, तब क्यों नहीं ऐसा करते? क्योंकि उनको मालूम है वहाँ पर चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं, वहाँ उनको मालूम है मेरा चालान हो जाएगा, मालूम है पेनलाइज हो जाऊंगा, दे विल बी शेम्ड, दे विल बी पुट इनटू प्रिजन।
उनको मालूम है यहां नहीं चलेगी, यहां पर चलेगी। तो इसलिए वो कुछ, आप कहीं पर थूकिए, कहीं पर आप लिटर कीजिए, कहीं आप गार्बेज फेंकिए, कहीं आप प्लास्टिक, कहने को तो हमारा प्लास्टिक बैन है जी। कौन सी ऐसी दुकान है जो प्लास्टिक नहीं दे रही है आपको? कौन सा ऐसे रेडी है या वेंडर है जो प्लास्टिक नहीं दे रहा आपको? इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पौधे नहीं लगाए जाते। मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पौधे दिल्ली में लगाए जाते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स ही दिल्ली में बिल्कुल है। और एनडीएमसी, मैं आपको बताऊं, एनडीएमसी एरिया में आप जाके देखो, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। दे शुड बी गिवन 10 out of 10। एनडीएमसी एरिया में जो चीज हो रही है, क्यों? क्योंकि वो इम्प्लीमेंट करते हैं। वहां पर 0 टॉलरेंस जोन है, वहां पर उनके टैंकर्स घूमते हैं, वहां पर अगर आप करोगे, आप इंटेंशन डालोगे, एनर्जी डालोगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन होगा, तो क्यों नहीं होगा? तो क्यों नहीं एनडीएमसी एरिया में जिस तरह से ग्रीनिंग है उस तरह से पूरे दिल्ली में क्यों नहीं है? ये पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशंस इसमें बहुत मदद कर सकती हैं ना। आप कॉर्पोरेट्स को दीजिए ना, आप ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, बिजनेस हाउसेज हैं, आप उनको जोन, आप उनको जोन्स दीजिए कि ये आपकी जोन है, ठीक है, आपको ये करना ही करना है। जितने ट्रैफिक आइलैंड्स हैं, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जितने भी अरावली का बचा हुआ फॉरेस्ट है, आप कोई अच्छी बड़ी कॉर्पोरेट को आप उनको दीजिए। उनको कोई क्या लगा लेगा? वो अपने 2-4 बोर्ड लगा लेगा, 2-4 टिकट का पैसा वो कर लेगा, 2-4 अपने कैफे खोले। इट डजंट मैटर सो लॉन्ग एज इट इज बीइंग कंजर्व्ड, इट इज बीइंग प्रिजर्व्ड। ठीक है, तो अगर जैसे सुंदर, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, सुंदर नरसे भी तो है, हुमायूं का मकबरा भी तो है, तो वहां पर भी तो वो पूरी हेरिटेज वॉक्स होती हैं, नेचर वॉक्स होती हैं। आप पूरे दिल्ली को जोन्स में बांट के बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हैंड ओवर कर दो। और इनफैक्ट अब काफी कॉर्पोरेट्स अपने सीएसआर के थ्रू कल्चरल एक्टिविटीज में आ ही रही हैं। तो पेड़ भी तो हमारे कल्चर का एक हिस्सा है, साइलेंट दिस थिंग ऑफ आवर कस्टोडियंस ऑफ आवर कल्चर सर्वाइवल। आपका पूरा सर्वाइवल। जोहान्सबर्ग हैज डन इट, एम्स्टर्डम हैज डन इट, फ्रैंकफर्ट हैज डन इट, हाइडेलबर्ग हैज डन। उनको उनके शहर जो थे ओवर पॉपुलेटेड थे, पॉपुलेशन जब माइग्रेशन हुई, उनके इंडस्ट्री सेटअप हुई, उनके पास पेड़ नहीं थे, उनके पास एक मेयर आया और कैसे कैसे इन चीज़ों की उन्होंने किस्मत बदल के रख दी पूरे शहरों की। अगर आप जोहान्सबर्ग की पूरी हिस्ट्री पढ़ें, एम्स्टर्डम की पूरी हिस्ट्री पढ़ें। व्हेन आई वाज विजिटिंग यूरोप, मैं हैनोवर में था उस वक्त 90s में, तो हम पढ़ाने गए थे वहाँ इंग्लिश डिपार्टमेंट हैनोवर यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ पर हमने देखा कि गुरिल्ला प्लांटेशंस होती थी। रात को 10 बजे जो डॉक्टर्स इंजीनियर्स थे वो अपनी गाड़ियों में, उस वक्त बीटल चलती थी, एक फोक्सवैगन की, एक छोटी सी प्यारी सी गोल सी। सिटीजन पार्टिसिपेशन था, सिटीजन पार्टिसिपेशन। पर गवर्नमेंट जो था, मैं आपको बताऊं, क्योंकि गवर्नमेंट कहती थी जहां खाली जगह मिले वहां पर पौधे लगाइए। नहीं, गवर्नमेंट ने कह दिया तो लोग कैसे मोटिवेट हो गए? अब यही तो बात है। बहुत आसान है, सरकार क्योंकि सरकार कहती थी पानी हम डालेंगे, आप लगाइए, आप लगाइए, और गवर्नमेंट के टैंकर्स जाया करते थे और पानी डालते थे। आई वाज राइट देयर व्हेन दिस वाज हैपनिंग। तो यहाँ फिर क्या मोटिवेशन की कमी है कि पॉलिटिकल विल की कमी है कि दोनों की कमी? इम्प्लीमेंटेशन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, चलिए आप ही बताइए, हम एक्चुअली क्या होता है, कॉर्पोरेटर एमएलए एमपी को तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश बना देते हैं, ठीक है, उनको आप वोट देते हैं और उसके अगले दिन उनके पाँव छूना शुरू कर देते हैं, उनको गेंदे के फूल देना शुरू कर देते हैं। बेसिकली व्हाट इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम? आप वोट डाल के आप उनको केवल 5 साल के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं एक सर्विस को, कि आप हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे गांव को लुक आफ्टर करें, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत अब मुझे बताइए, अब स्मॉग चल रही है, पिछले 2 महीने में कितने पॉलिटिशियंस ने आकर सोल्यूशन के रूप में बात करी है? कोई भी टीवी न्यूज चैनल में या रेडियो चैनल में या कोई बात, सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं। कभी किया है? ब्लेम कम हो गया है, हाँ, जो भी ऑब्वियस रीजंस है, बट 10 साल से दिल्ली ऐसी पोल्यूशन से जूझ रहा है एंड सोल्यूशन हमें कोई नहीं मिला है। एंड सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखिए, हम एक चीज जानते हैं, जो सोल्यूशन मैं अब आपको बताऊं, एक सिंपल सी चीज है, अगर गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं हो सकता? क्या डिमोनेटाइजेशन नहीं हुई? 370 नहीं आया? क्या जीएसटी नहीं आया? कोई भी चीज हो, अगर गवर्नमेंट चाहती है तो वो होकर रहता है। हो ही नहीं सकता कि ना हो। आई एम वेरी वेरी स्ट्रांगली आई एम सेइंग दिस। वो उस तरह की प्रायोरिटी तो होनी चाहिए।
मैं तो हैरान होता हूँ कि हम लोग गाज़ा के ऊपर इतना कवरेज दे रहे हैं, जहाँ सिर्फ अभी 12 से 14 हज़ार लोग मरे हैं। मैडम 10 लाख लोग हमारे दिल्ली में मरे हैं रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को, इसकी कोई कवरेज ही नहीं है। 5,34,000 तो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे बच्चे मर गए, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, लंग्स में पानी भरने से, डबल निमोनिया से, उसके ऊपर कोई कवरेज ही नहीं है। हमारी कितनी रेडियो और कितनी हमारे टेलीविज़न की टीम्स जाके सफदरजंग के रेस्पिरेटरी वार्ड्स में गई है या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के मेडिकल साइंसेज में गई है। कोई देखता, प्रायोरिटी ही नहीं है, प्रायोरिटी ही नहीं है। मर रहे हैं तो मरने दो, बट वी आर मोर बॉदर्ड कि यूक्रेन में क्या हो रहा है। यूक्रेन में 464 लोग मर गए, उसकी कवरेज आएगी। हमारे लाखों बच्चे मर गए आउट ऑफ यही स्मॉग रिलेटेड जितना भी हमारा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स है, उसके ऊपर कोई कवरेज ही नहीं है। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। हमें मालूम ही नहीं है हमको किस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखना है। क्यों? क्योंकि हम अपनी हेल्थ, यू नो व्हाट, इसको एनवायरमेंट इशू मत बोलिए, ये हेल्थ इशू है। हाँ, उसका परसेप्शन थोड़ा चेंज हो जाता है। परसेप्शन, आपको नैरेटिव बदलना पड़ेगा। आप अपने जीवन के बारे में बात कीजिए, आप अपने सर्वाइवल पे बात कीजिए। ये जो चीज़ है, हम तो ऐसे सोचते हैं अरे वो क्योंकि अमलतास लगा हुआ है, वो पीपल है, वो नीम है, वो है, वहाँ पर गार्डन में पेड़ लगे हुए हैं। कुछ साल पहले तो लोगों ने पाम लगाना शुरू कर दिया था एज एपिटोम ऑफ लग्जरी। एग्जैक्टली। तो हम लोग ना विजुअल मर्चेंडाइजिंग में बहुत ज़्यादा जाता है ना। हम लोग इस चीज़ में बहुत है कि खूबसूरती, हम लोग को ब्यूटीफुल बनाना है चीज़ को। अरे ब्यूटीफुल बनाना है, ब्यूटीफुल तो तुम ब्यूटी एक अपने आप में अच्छी बात है, लेकिन वही तो मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, जब तक गवर्नमेंट डजंट टेक अ वेरी स्ट्रांग स्टैंड। देखो दो तरीके होते हैं, या तो गवर्नमेंट स्ट्रांग स्टैंड ले कि ये करना है, दिल्ली का ये ज्योग्राफी एरिया है, इसमें ये जोनिंग होगी, हम इस तरह से, हम एनजीओज को बुलाते हैं, हम सिटीजन ग्रुप्स को बुलाते हैं, उनको पूरी जिम्मेदारी दो। यू हैव टू ट्रस्ट देम, उनको फंडिंग भी दीजिए, उनको पार्टनरशिप होनी चाहिए। कॉर्पोरेट्स आपके बैठे हैं, कॉर्पोरेट्स बहुत प्यारे हैं, वो आप बुलाइए ना उनको। मुझे एक बात बताइए, इट्स वेरी क्लियर, गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्गर विल चाहिए, गवर्नमेंट का इम्प्लीमेंटेशन करने का होना चाहिए। लोग अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? एग्जैक्टली, नाउ आई एम कमिंग टू दैट। यहाँ बैठे मैं ये कहती रहूं कि गवर्नमेंट नहीं कर, मैं खुद क्या कर सकती हूँ? नाउ एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम कमिंग टू। तो दो तरीके काम करने के, या तो सरकार से काम करवाइए, सरकार से काम करवाइए, सरकारों को बदलिए मत, सरकारों से काम करवाइए। आप घर में किसी को रखते हो काम के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, तो उससे काम करवाना आना चाहिए। आपकी डिमांड तो करनी है, डिमांड तो करनी है, बात तो करो। आप बात ही नहीं कर रहे। हाँ, जब वो उसको इलेक्शन मुद्दा तो बनाना चाहिए। एग्जैक्टली। आप जब इलेक्शन मुद्दा बनाएंगे तभी वो चीजें रिजॉल्व होंगी। चलो खैर, मैं इस चीज पे बात करने नहीं आया, ये तो हो गई आपके गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल बात। मैं पूछ रही हूं, अब मैं बात कर रहा हूँ कि एज ए सिटीजन मूवमेंट, जब एज एन इंडिविजुअल, हर इंसान के पास जंगल नहीं होता, हर इंसान के पास कोई नदी नहीं होती, कोई पहाड़ नहीं होते, कोई नदियाँ, कोई पेड़ लगाने के क्षेत्र नहीं होते, लेकिन हर इंसान के पास एक घर होता है। घर सबके पास है। सब रहते हैं। आप घर से हरियाली के, आप जो है, आपका शंखनाद जो होना चाहिए वहां से होना चाहिए। सो दैट इज व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू डू फॉर द पास्ट 30 years। घर घर जाके, एक एक स्कूल में जाके, सरकारी स्कूलों में जाके, लोगों को अपील करके, छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, उनको इस तरह से हम एजुकेट करना चाह रहे हैं कि आप अपनी रूफटॉप नर्सरी बनाइए, आप अपनी बैल्कनी में बनाइए, आपको पौधे चाहिए हमसे ले जाइए, आपको खाद चाहिए हमसे लेके जाइए, केमिकल मत यूज कीजिए, पेस्टिसाइड मत यूज कीजिए, स्प्रेज मत यूज कीजिए। आपको जो है, आपको नेचर बेस्ड जो पेस्टिसाइड है वो हम बना के देते हैं, हम आपसे पैसे भी नहीं लेते, लेकिन चेंज आया है आफ्टर द पैंडेमिक आल्सो। एंड एक लोगों का मैं देखती हूँ काफी लोगों को घर में पौधे रखने शुरू करे हैं लोगों ने। कोविड महाराज जी ने तो इतनी ब्लेसिंग दी है कि जो लोग सोए हुए थे वो थोड़े जागे हैं, एकदम जागे। हाँ, सब नहीं, इट पिंच्ड एवरीबॉडी, सब तो नहीं हुआ अभी। मैं खुद ग्रेटर कैलाश में जहाँ पना पार्क में, आई विल मेक एन एफर्ट टू गो देयर। मैं देखती हूँ कि वहाँ जो लोगों की तादाद है काफी बढ़ गई है, बट सिर्फ यूज कर रहे हैं उसको। अब उसको हम लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं? जैसे आपने कहा कि वो इतना बढ़िया इलाका है दिल्ली के अंदर, एक पूरा और 4-5 कॉलोनीज हैं उसके आसपास, वन ऑफ द बेस्ट मैन मेड फॉरेस्ट है जहाँ पर। हाँ, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया जगह है। सो जो ये कॉन्वर्सेशन हो रही थी ना कि हमारी नेटिव प्लांट स्पीशीज का है, मैं समझता हूँ वी शुड नॉट बी रिजिड अबाउट इट। जैसे
गाड़ियों का मॉडल बदलता है, वहां से बात करनी शुरू करी जहाँ गाड़ियों का मॉडल बनता है, फोन का हाँ। मॉडल्स बनते हैं, हमारे ब्रांड्स बदलते हैं, हमारे कपड़ों का तरीका बदलता है, हमारे खाने पीने का तरीका बदलता है। प्रकृति को भी तो बदलने का एक हक है। प्रकृति क्यों, मेडागास्कर से आपने गुलमोहर ला के यहाँ पर लगा दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर तकरीबन आई थिंक अराउंड 34,000 मैंने गुलमोहर लगाया दिल्ली में। मेरे पास पूरी एक्सेल शीट है, एक एक सड़क, एक एक लोकेशन, एक एक डेट, एक एक मंथ, एक एक साल, हमने कब कब कौन सी चीज़ लगाई। बहुत लोगों ने हमारे को ट्रोल किया इस बात पे, आपने गुलमोहर कैसे लगा दिया, वो तो कच्ची लकड़ी होती है, ये होता है। मैंने कहा भाई, जो दूसरे वाले हम नेटिव स्पीशीज लगाते हैं, अगर गाय भैंस बकरी उसको खा रही है, और अगर मैंने यहाँ पर जंगल जलेबी लगा दी या यहाँ पर मैंने गुलमोहर लगा दिया या पुत्रनजीवा लगा दिया, क्योंकि मुझे पता है कि इसको बकरी नहीं चबाएगी, गुलमोहर को बकरी नहीं चबाती, ठीक है ना। तो अगर आप करंज पापड़ी है, जैसे करंज पापड़ी, अरे आपने तो बहुत ज़्यादा करंज पापड़ी लगा दी। भाई मैं आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट बेसिक ग्रीनरी फॉर माई सिटी। मेरी दिल्ली है, अब दिल्ली मेरी है, क्योंकि मेरा आधार कार्ड दिल्ली का है, अब मैं दिल्ली का हूँ, है ना, तो दिल्ली भी मेरी है। तो अगर मैं यहाँ बेसिक हरियाली लाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेसिक छाया लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी बढ़े, जो चीज़ सर्वाइव कर सकती है वही तो लगाएंगे आप। अच्छा, फिर अगर आपने वो वाली स्पीसीज लगाई, उसकी सिक्योरिटी कौन करेगा अगले 5 साल? उसको ट्री गार्ड कौन लगाएगा? ट्री गार्ड तक तो जो स्मैकी होते हैं वो उठा के ले जाते हैं, 18 रुपए किलो इस वक्त लोहा बिक रहा है दिल्ली में, वो जाके बेच आते हैं। वो भाई वो आदत से मजबूर है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल अबाउट इट। बस मैं यहाँ एक सेंटेंस बोलूंगा, आप कभी भी ग्रीनिंग की प्लानिंग करें, दिल्ली की डेवलपमेंट की प्लानिंग करें, आप यहाँ पर गार्डन्स की प्लानिंग करें, आप यहाँ फॉरेस्ट एरियाज की प्लानिंग करें, ग्रीन बेल्ट्स की प्लानिंग। ग्रीन बेल्ट्स तो सारी खत्म हो गई, सब खत्म हो गई। ग्रीन बेल्ट कहाँ है? दिल्ली में, सड़कों के आसपास, जो पहले 20 मीटर टू द लेफ्ट एंड 20 मीटर टू द राइट। आप रिंग रोड और आउटर रिंग रोड ही ले लीजिए, सबसे बड़ा उदाहरण है दिल्ली कि जो पूरा कर्ण, हाँ, फरीदाबाद आप ले लीजिए, फरीदाबाद मथुरा रोड जो थी, कि मैंने वहां पर 1.25 लाख हमने खुद शीशम और नीम लगाया, यहाँ से लेके पलवल तक का। अब सारा गायब है, सब निकल गया वहां से। तो क्या है कि वो चीज लगाइए जो प्रैक्टिकल है, जो आप सर्वाइव कर। पता क्या, प्लांटिंग इज नॉट द इशू मैम, सर्वाइवल इज द मेन इशू। आप एक पौधा, एक खड्डा खोद के उसके अंदर आप पौधा लगाते हैं, अगर उसको वृक्ष नहीं बना पाए आप, तो फिर वो तो पाप है, वो तो पाप है। हमारी नानी कहा करती थी कि अगर तेरा एक भी पौधा मरा ना, तो बेटा समझ लेना 7 जन्म तक तू, फिर वो तो डराने का तरीका होता था उनका, बचपन में जैसे बच्चों को डरा। तो इट्स अ वेरी डीप मीनिंग। आप इस तरह से आप छोड़ नहीं सकते। हाँ सर, प्लांटेशन इज दिस इज मर्डर, दिस इज मर्डर। आप प्लांट्स लगा देते हैं और उसको पानी नहीं देते हैं, उसको प्रोटेक्शन नहीं करते हैं। पानी देना एक बात है, लेकिन प्रोटेक्शन उसको कैसे करोगे? गाय भैंस बकरी से एक तो आपको प्रोटेक्ट लोगों से और ह्यूमन बीइंग से। आप नीम लगाते हैं, तो अब मैं आपको बताऊं, हमने तुगलकाबाद में, यहाँ पर तिलपत वैली में बहुत सारा नीम लगाया, तो लोग पैदल अपना घूमने आए, तो जी सुबह दातून करना है जी, तो वो टर्मिनल बेड को निकाल के, और वो अपने हिसाब से बड़ा हेल्दी काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपने दांत साफ कर लिए, दांत साफ कर लिए, वो तो पेड़ साफ हो गया, क्योंकि उसकी ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि वो स्टंटेड ग्रोथ होगी। अब उसकी ब्रांचिंग होगी, लेकिन वो टॉप ग्रोथ नहीं होगी उसकी। तो ये छोटी छोटी चीजें। इसीलिए जब एनवायरमेंटलिस्ट हमारे पास आते हैं कि नहीं जी हम तो सिर्फ नेटिव लगाएंगे, नेटिव लगाएंगे, नेटिव लगाएंगे, मैं उन्हें बोलता हूँ बेटा बैठो, पहली बात तो कितने पेड़ लगाए हैं तुमने, ठीक है ना। हम तो 2.5 करोड़ पेड़ लगाने के बाद भी अभी हम सीख रहे हैं। तुमने अभी तक, तुमने सिर्फ अभी, बहुत जरूरी है। अगर तुम सिर्फ ये सोचते हो कि तुम गमले में हरी मिर्च और बैंगन लगा के उसकी इंस्टाग्राम पे फोटो डाल के एनवायरमेंटलिस्ट बन गए हो, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। गाय भैंस बकरी नाम की भी कोई चीज होती है, प्रोटेक्शन भी नाम की चीज है, सिक्योरिटी भी है, आपको चौकीदारी भी करनी है, आपकी पूरी जिम्मेदारी है। ये तो वो बात होगी, आपने बच्चे की डिलीवरी तो कर दी अपने, लेकिन आप कहते हो कि नहीं जी अब मैं इसका बस जयराम जी के, अब मेरा कोई लेना देना नहीं, ऐसे थोड़ा। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपने इतना बढ़िया काम किया है, इतने सालों से कर रहे हैं, तो आपके साथ एक अच्छी टीम जुड़ी हुई, लोग जुड़े होंगे आके, एक कारवान तो बनता जाता है। जी मैम, ऐसा हुआ था कि 2010 तक हम खुद काम कर रहे थे। हाँ, तो आपकी बातों से प्रभावित होके कि कैसे आपने जोड़ा है लोगों नहीं, को? बातों से नहीं, हाँ, काम देख के हम कर रहे होते थे। मेरे साथ जितने भी 4 लाख लोग जुड़े हैं आज तक, वो क्या हैं, हम जाके काम कर रहे हैं, लोग आ गए, किसी ने गाड़ी खड़ी की, किसी ने मोटरसाइकिल खड़ा किया, क्या कर रहे हो सर? बाबूजी क्या कर रहे हैं? बेटा पेड़ लगा रहे हैं। अरे पेड़ लगाने से क्या होगा? ये होगा। अब गुफ्तगू हो गई, थोड़ी कॉन्वर्जेशन हुई, 5 मिनट बाद वो उसने स्टैंड पे लगाया स्कूटर, आ गया साथ में।
अच्छा लाओ जी फावड़ा दो, 2 खड्डे मैं भी खोद देता हूँ, है ना, लाओ जी 2 मैं भी लगा देता हूँ। अब क्योंकि उसने लगाया, अब उसकी हेडेक हो गई, वो तो फंस गया, है ना। अब वो जितनी बार वहाँ से ऑफिस से निकलता है, वो जाके उसमें पानी डालेगा, फिर व्हाट्सएप करेगा, जी मैंने पानी डाल दिया, मैंने वेडनेसडे को डाला था, फ्राइडे सर मैं लीव पे जा रहा हूँ, अब दिवाली की छुट्टियां हैं, मैं ज़रा हिमाचल प्रदेश फैमिली के साथ जा रहा हूँ, किसी और वॉलंटियर को आप बोल सकते हैं, मेरा पौधा सेंस ऑफ ओनरशिप जो खुद लगाएंगे तो आपको सेंस ऑफ ओनरशिप आएगी। और कभी भी किसी को बताइए मत, ये तो चलो रेडियो का प्रोग्राम है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, हम बात नहीं करते, आप काम कीजिए, दिन में 10 घंटे काम कीजिए, 100 लोग तो जुड़ ही जाएंगे आपके साथ आपसे। अब अगर जैसे लोग जुड़ना चाहें, आपको सुनेंगे लोग, और अब आपका सोशल मीडिया प्रेजेंस भी है, आप मैंने देखा इंस्टाग्राम पे वीडियोस भी बहुत बढ़िया बढ़िया डालते हैं जी। तो लोग आपसे जुड़ने का बेस्ट तरीका क्या है? थ्रू योर सोशल मीडिया हम लोग उससे बेस्ट तरीका वही है? सोशल मीडिया पे आके आप अपने बारे में थोड़ा सा या ईमेल पे डीएम कर दीजिए कि हमारा यहाँ है, और जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पर पीपल उग रहा है, टंकी पे पीपल उग रहा है, हमारे कॉलोनी में है, आप आके, तो हम अपनी टीम भेजते हैं, मैं खुद चला जाता हूँ अगर मैं दिल्ली में हुआ, क्योंकि मैं पूरे भारतवर्ष भ्रमण करता रहता हूँ, तो हमको जाके वो फिर पीपल को एक्सट्रैक्ट करके हम उसको रेस्क्यू करके ले आते हैं। अपनी नर्सरीज़ हैं, हमारी खतौली में 4 एकड़ ज़मीन है, वहाँ पर हमने किराए पर ली हुई है, वहाँ नर्सरीज़ हैं, फिर दिल्ली में है, नोएडा में है, ग्रेटर नोएडा में है, फिर अब हम पूना में भी ले रहे हैं, पूना में पूरा साउथ हम कवर करेंगे। तो इनको ला के फिर उनको बड़ा करते हैं, बच्चों को बड़ा करना पड़ता है 4 फुट तक, कम से कम 4 फुट का जब पौधा हो जाता है, फिर हम उसको जाके एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स के अंडर, CSR प्रोग्राम्स के अंडर जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या ग्रीन बेल्ट्स हैं, हम अपनी चुन लेते हैं, हमारे अपना दिमाग चलता रहता है। अच्छा अब जैसे GT रोड पे अभी सारा कट गया है, यूकलिप्टस कटा है, वहाँ कटा है, हम लोगों ने ऑलरेडी टीम्स भेज के वहाँ पर नीम और शीशम लगाना शुरू कर दिया। सब वॉलंटियर्स हैं, सब वॉलंटियर्स हैं मैम, सारे वॉलंटियर्स हैं। हमारा एक ट्रस्ट बना। अच्छा तो 2010 में क्या हुआ, हमारी मुलाकात माइक पांडे जी से हुई। माइक पांडे जी जो हैं वो नेशनल ज्योग्राफिक के मतलब वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म आप जानते होंगे, तो उनका एक बार फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कोई नेशनल अवार्ड दे रहे हैं, सो पहला नेशनल अवार्ड कोई रिलायंस का तरफ से एक है, तो वो एक ही बार एक ही साल में दिया गया, अनसंग हीरो करके। तो हम थे और 2-3 फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, उनको एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के लिए दिया गया। तो वहाँ जब हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तुम ज़्यादा शहरों में काम करो। अभी क्या है, जैसे इरिगेशन कैनाल्स हुई, नदियों के किनारे हुए, तालाब हुए, पंचायती हुई, गोचर ज़मीनें हुई, भाई जिसने बुला लिया वहाँ चल दिए और वहाँ जाके उनके पेड़ वेड़ लगाए, फिर गांव वालों को सिखा दिया, सरपंचों को सिखा दिया कि भाई इस तरह से पानी देना है, इस तरह से खाद बनानी है, इस तरह से इसकी सिक्योरिटी है, फेंसिंग ज़रूर करना, ये करना जो करते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम शहरों में ज़्यादा काम करनी शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2 उन्होंने कहा कि एक संस्था बनाओ, क्योंकि आप अकेले इस सब का काम कर रहे हैं। तो हमने और उनके संस्था का नाम क्या है? जी, तो वहाँ पर जॉन अब्राहम भी थे, तो मिस्टर जॉन अब्राहम ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि 2 साल तक मैं तुमको फाइनेंशियली हेल्प करूँगा। अच्छा। उन्होंने हमें मोटरसाइकिल्स दिए, उन्होंने हमें कपड़े दिए, उन्होंने हमें टूल्स खरीद के दिए, हमें जो भी चीज़ें हमारे पास नहीं थी, ज़िंदगी का पहला फ़ोन दिया, एक अच्छा वाला, उस वक्त नोकिया का फ़ोन आता था, उस वक्त तक हमें पे फ़ोन भी नहीं होता था। जॉन जो है, जॉन अब्राहम ही हिमसेल्फ एलिफेंट कॉरिडोर्स के ऊपर बहुत काम करते हैं, बड़ा चुपचाप करते हैं वो काम। जी हाँ, अपनी तरफ ज़्यादा। इनफैक्ट आपने उनकी बात करी, एक बॉलीवुड के हमारे और मित्र हैं जैकी श्रॉफ जी, उन्होंने आजकल जो he has been helping us, yes, he's associated with you, but वो खुद भी इतना अच्छे रोल मॉडल बन गए हैं कि हर जगह वो जब जाते हैं तो एक छोटा सा मेरे को लगता है उससे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। वो किसी शादी में जाएं या कहीं भी जाएं, वो एक छोटा सा पौधा लेके, और उसकी मैसेजिंग इतनी स्ट्रॉन्ग। मैम आपको एक बात बताऊं, फार्मिंग टू फॉरेस्ट्री, हरियाली टू बागबानी, जिस दिन हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस, और मैं ये चीज़ लिखता रहता हूँ, मैं दिया मिर्ज़ा जी को लिखता हूँ, शैकी श्रॉफ जी को लिखता हूँ, जॉन अब्राहम साहब को लिखता हूँ, लेकिन जॉन अब्राहम साहब वो बोलते नहीं है ज़्यादा, एज यू राइटली सेड, वो बड़े हम्बल हैं, बहुत। मैं लोगों को फीड करता रहता हूँ, मैं तो PMO में भी चिट्ठियाँ लिखता रहता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है एक बार अगर प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में ये बोल दी कि 50% ऑफ अवर लैंड स्पेस शुड बी अंडर ग्रीन कवर,
तो आप देखो सारी ब्यूरोक्रेसी सारी के सारी एक्टिवेट हो जाएगी। पॉलिटिकल विल की बात आ जाती है। एक बात बताऊं, मैं ये चीज समझाऊं, मैं आज के यंगस्टर्स की भाषा यूज करके इस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। यू गॉट टू मेक थिंग्स कूल। अगर फार्मिंग को, एग्रीकल्चर को कूल नहीं बनाएंगे, आप कूल नहीं बनाएंगे, लोग जाएंगे नहीं। आज किसान का जो बच्चा है वो किसानियत नहीं करना चाहता, वो जाके मॉल में जाके शॉपर स्टॉप पे वो परफ्यूम बेच लेगा 8,000 रुपए की तनख्वाह पे, लेकिन वो अपने बाप दादा की जमीन जो 15 एकड़ की जमीन खराब हो रही है उसके ऊपर जाके इरिगेशन नहीं करेगा, उसके अंदर सही टाइप से बीज नहीं लगेगा, क्योंकि उसको तरीका नहीं है, उसको मोटिवेशन नहीं, उसके रोल मॉडल्स खत्म हो गए। तो फॉरेस्ट्री फार्मिंग, चाहे वो गार्डनिंग हो चाहे कुछ हो, अभी भी छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं, गार्डनिंग ग्रुप्स बने, आप देखते होंगे सोशल मीडिया में बहुत। मैं उन लोगों को बहुत एनकरेज करता हूँ, कम आउट इन दी ओपन, लोधी गार्डन में मीटअप्स करो, IIC बुक करो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम बुक करो, लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग। जब तक आप बात नहीं करोगे, आप आवाज बुलंद नहीं करोगे, एक तो काम करने वाले लोग चाहिए ऑन द ग्राउंड, रोल मॉडल्स, एक्शन रोल मॉडल्स चाहिए। दूसरा, आवाज बुलंद करने वाले चाहिए कि हमें ये करना है ना। जब तक आप बात नहीं करेंगे, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं, नैरेटिव को बदलना है पूरा। तो अगर आप नैरेटिव को बदलेंगे तो अपने आप ही। सो पॉलिटिशियंस आर वेरी इंटेलिजेंट, वे आर नाइस पीपल। उनको अभी जो है दूसरे टाइप का इमोशनल नैरेटिव मिल रहा है कि ऐसे ऐसे करो, धर्म के नाम पे करो, कास्ट के नाम पे करो, ये करो, तो वो लोग उस तरफ है। आप उनको खींच के लाइए, उनको एजुकेट कीजिए, आप नैरेटिव बदलिए, आप नैरेटिव बदलिए। सिटीजंस हैव टू चेंज द नैरेटिव एंड सिटीजंस नीड टू क्रिएट मोर रोल मॉडल्स। सो इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ 98% बात हो रही है, 2% एक्शन हो रहा है। इस चीज को रिवर्स करना, 98% एक्शन होना चाहिए, 2% बात। आई होप थ्रू दिस पॉडकास्ट हमने पूरा दिल्ली फोकस्ड बनाने की कोशिश करी है कि आपकी आवाज और लोगों तक पहुंचे and a lot more people join you in this endeavor. Now I have to ask you something. Tell me, you have to describe Delhi for me in 5 words. Delhi is India. ये दिल्ली जो है, मैं समझता हूँ ये हमारे भारत की धड़कन है। और जो चीज़ें यहाँ हो रही हैं, चाहे वो क्लाइमेट रिलेटेड हो, पानी से रिलेटेड हो, मैं तो एलिमेंट्स की बात करूँगा, एयर, वाटर एंड सॉइल, सेम चीज़ भारतवर्ष में हो रही है। अब नॉर्थ ईस्ट में अभी मैं था, वहाँ भी यही हो रहा है, गुजरात में भी यही हो रहा है। आप जम्मू डिवीजन चले जाइए, मैं कश्मीर नहीं, मैं जम्मू डिवीजन की बात कर रहा हूँ, कन्याकुमारी चले जाइए, सेम हो रहा है। इट इज़ अ माइक्रोकॉज्म। ये हमारी चिप है, इस चिप को ठीक करना है, इस चिप का हार्डवेयर ठीक करना है, इस चिप का सॉफ्टवेयर ठीक करना है। दिस इज द रोल मॉडल। आप इस चीज़ को ठीक कर लेंगे, भारतवर्ष की जो बाकी 59 सिटीज़ हैं जो ग्लोबल 100 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज़ में आई हैं, वो ठीक हो जाएंगे। यू हैव टू क्रिएट द मॉडल राइट हियर इन दिल्ली। आपको हरियाली के मॉडल्स बनाने हैं, ग्रीन बेल्ट्स के मॉडल्स बनाने हैं, आपको मैन मेड स्मॉल माइक्रो फॉरेस्ट के मॉडल्स बनाने हैं, आपको रूफ टॉप और आपको गार्डनिंग के मॉडल्स बनाने हैं, आपको हेरिटेज जो ट्रीज़ हैं उसके प्रोटेक्शन के मॉडल्स बनाने हैं। एवरीथिंग हैज़ टू बी डन। दिस इज़ योर लेबोरेटरी, दिस इज़ योर लेबोरेटरी। दिल्ली में जो होगा वो यहाँ की धड़कन है, यहीं पर ब्लड जो है प्योरीफाई होता है और यही फिर नसों में बहता है पूरे भारतवर्ष के सारे शहरों में। सो एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी कॉन्शियस डिसीजंस आई टुक। ये भी मेरी नानी का हुक्म था, हुजूर का हुक्म था कि आप दिल्ली में रहोगे। मेरे को दिल्ली बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। जब मैं आया यहाँ पे, मैं पंजाबी बाग में एक कमरा लेके रहता था, मैं नानी को बहुत रोता था। मैंने कहा नानी मेरे को नहीं अच्छा लगता, मैं चंडीगढ़ का रहने वाला, इतना ग्रीन, इतना सब कुछ, मैं डलहौजी का पढ़ा हुआ हूँ, देहरादून में पढ़ा हूँ, पूना में रहा हुआ हूँ, मेरे को, मैं जंगल का आदमी हूँ, मेरे को ये कहाँ दिल्ली में। कहते नहीं बेटा, दिल्ली नीड्स यू, तुमको यहीं रहना है और यहीं काम करना है। जितनी आर्टीरियल रोड्स हैं 50 स्क्वायर किलोमीटर, उस वक्त 50 के सारे पेड़ कट गए थे, तो तुमको इसको ठीक करना है। तुम इसको ठीक कर लो, भारतवर्ष ठीक हो जाएगा। यहाँ पर बैठोगे तो तुम्हारी आवाज़ सुनाई देगी। तुम चंडीगढ़ के किसी कॉलोनी में बैठोगे, पूना में जाके बैठ जाओगे, फिर हो सकता है सिर्फ महाराष्ट्र सुने तुम्हें, लेकिन तुम्हें दिल्ली में रहना है और दिल्ली में लोगों को बदलना है। और वो हमेशा कहते डोंट वेस्ट टाइम ऑन पॉलिटिकल टॉक्स। तुम अपना काम करो, लोग तुम्हें देखेंगे। रोल मॉडल एक्शन से बनता है। तुम खड्डे खोदोगे, दुनिया खड्डे खोदेगी। तुम पानी डालोगे, दुनिया पानी डालेगी। तुम खाद डालोगे, वो डालेंगे। तुम अलग अलग प्लांट स्पीसीज के ऊपर कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करोगे, वो लोग करेंगे। और बायोडाइवर्सिटी इज द कीवर्ड। बायोडाइवर्सिटी इज द कीवर्ड। पेड़ों के नंबर्स के ऊपर कभी मत जाओ। बिल्कुल उसको आपको राइट स्पीशीज होनी चाहिए, प्रैक्टिकल हो, क्या चीज़ सर्वाइव कर सकती है वहाँ लगाइए। ये सब नॉलेज से और ये सब प्रैक्टिकल काम करने से आता है।
ये सिर्फ टेक्स्ट बुक पढ़ लेना, ट्रीज ऑफ दिल्ली की एक प्रदीप किशन जी की एक किताब घोटा मार लेना, फिर जाके डिस्कशंस करना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाना, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में वर्कशॉप का, इससे दिल्ली नहीं बदलेगी। दिल्ली बदलेगी खड्डे खोदने से, दिल्ली बदलेगी आपके गमलों से, दिल्ली बदलेगी जब आप अपनी छत में बागबानी करेंगे। और आपको एक चीज़ समझनी होगी, आज आप अपने मंदिर में एक कोई भी आपका जो फेवरेट पेड़ है उसके पत्ता लीजिए और उसको फ्रेम करा के वहाँ रखिए, और याद रखिए डेली अपना सुबह शाम अपने आप को याद दिलाइए, पत्ता ही परमात्मा है। आपको दिल्ली के बारे में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? दिल्ली के मेरे को सबसे आपने अच्छी बता तो दिया, अच्छा क्या नहीं लगता? दिल्ली की जो फ्लेक्सिबिलिटी है, अडेप्टेबिलिटी है, यहाँ का जो अल्हड़पन है, ये क्योंकि दिल्ली का कोई परसोना नहीं है ना, आपका स्ट्रेट जैकेट परसोना नहीं है। जैसे आप अमृतसर जाते हैं तो एक टाइप के लोग होते हैं वहाँ पे, है ना, चंडीगढ़ जाएंगे वहाँ पर भी चलो एक टाइप के सरकारी लोग हैं, अर्बन जैसे हैं, पूना जाएंगे वहाँ पर एक टाइप के लोग हैं, इलाहाबाद जाएंगे, लखनऊ जाएंगे तो एक तरीके का। दिल्ली का कोई डिफाइंड वो नहीं है। दिल्ली जो है, मैं ये गोलगप्पा चाट पकौड़ी है, ये बड़ी स्वाद है, बस मज़ा आता है। यहाँ पर आओ तो धक्के भी खाते हो, करियर भी बन जाता है। जैसे बम्बई मेरी जान वो होता था ना, बॉम्बे में, मैं बॉम्बे में भी काफ़ी रहा हूँ। तो दिल्ली की एक अपनी इश्कबाजी है यहाँ पर। यू हैव अ सर्टन सेंस ऑफ, मुझे ऐसा लगता है कि मोहब्बत करने की सबसे अच्छी जगह है ये। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर बुद्धा जयंती पार्क है, महावीर पार्क है, यहाँ पर सिटी फॉरेस्ट हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पार्क्स अगर पूरे हिंदुस्तान में देखा जाए, पहले बेंगलोर हुआ करता था, चंडीगढ़ भी हुआ करते थे, अब दिल्ली है। डीडीए के ही आपके 16,000 पार्क हैं। बड़ी बॉलीवुड की फिल्में जब भी सारी तो यहीं पार्क्स में, जब रोमांस दिखाना होता है तो यहीं के पार्क्स में शूट होती है। यस। अगर पूरा देखा जाए, अगर बॉम्बे में बेचारा एक कपल है, उसके बाद तो कोई जगह ही नहीं है जाने की, वो जाके जूहू बीच में बैठेगा, यहाँ पर वहाँ पर जाकर वो मरीन बीच में बैठेगा। दिल्ली में तो कदम कदम पे आप पार्क्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पार्क्स हैं, ये है वो है। खैर इन लाइटर वर्जन में लाइटर उसमें बोल रहा हूँ, लेकिन ये है कि दिल्ली धड़कन इसलिए है क्योंकि ये पॉलिटिकल कैपिटल है आपका। यहाँ पर आप मैम जो भी करेंगे, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, चाहे कोई इमोशनल बात हो, चाहे आपका कुछ भी हो, आप जो करेंगे वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हार्ट से जो भी ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में से जो भी ब्लड प्योरीफाई होकर निकलेगा, वही तो जाके सारी नसों में बसेगा। तो जो मॉडल्स क्रिएट करने हैं, मैं इस वर्ड को यूज़ करता हूँ, पायलट प्रोजेक्ट्स जो क्रिएट करने हैं, वो आपको दिल्ली और दिल्ली के आसपास NCR जो है, ये 32 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इसके अंदर आप क्रिएट कीजिए, पूरा भारत आपको फॉलो करेगा। थैंक यू सो मच पीपल बाबा, इट्स वाज वेरी इनलाइटनिंग एंड बहुत मज़ा आया आपसे बात करने को, और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। As we conclude this episode of A Delhi Love, thank you People Baba for reminding us that Delhi's trees are more than just vegetation. They're living stories, vibrant symbols, and the breath of the city itself. So the next time you walk through Delhi's streets, take a moment to appreciate the tall trees amidst all the hustle and bustle, reminding us of the beauty and harmony that nature brings to urban life. Thank you for tuning into A Delhi Love, Ishq Mohabbat Pyar. Until next time, I'm Yasmin Kidwai.